Hello young physics learner, there is a big news to share with you, and that's a major change in the educational policy of MHRD department. First of all, you must know about the government policies because it is related to you, but I am not here to tell you in explain form about these policies. You can go through with the news channel and you can get the latest details of this policy. It will be applicable after some time, and it is for all students, for school student till the 12th class, as well as after the graduation, in graduation and after graduation. So there is a vast change in the educational policy from school level, secondary level and to the higher education level. So the major change is that we means now you don't need to choose any stream. Now you can choose the subject. You can have any choice related to subject. You can choose political science along with physics. You can choose any commerce subject, account subject, like with the physics or mathematics subject. That means there is no bifurcation of stream. So that's a great news. It is a big change in the educational policy. So hope for the best and do your best. So let's start with the numerical series from the S.C. Verma. In continuity with that, related to the unit magnetostatics, that is magnetism and matter, we will do some numericals. In my last video we have done some numericals based on magnetic effect of electric current, and now we will do some numericals that are based on magnetostatics. So let's start. And as I told you earlier, if you don't have S.C. Verma book, I will give you one link, or you can go through online websites. You will get the link of this S.C. Verma numericals and you will gain confidence by this. So first numerical, today's first numerical, the magnetic moment of assumed dipole at the earth center is 8 into 10 to the power 22. Again I am saying that keep a note copy with you. You can note down numerical statement and then you can do questions, because writing is must for class 12th. So first numerical, magnetic moment is represented by capital M. You know this. It is given as 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. Formula क्या होता है magnetic moment का? M is equal to NIA. This is the formula. Magnetic dipole moment is the full form. And afterward calculate the magnetic field B at the geometric pole of the earth. So this one is earth, this is geographical pole, and this one is equator. Clear? So it is asked in the question, पोल पे निकालना है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ये आपको नोन होता है, फिर भी दी हुई है क्वेश्चन में 6400 किलोमीटर. सो पोल साइड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी की वैल्यू. क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली related to earth magnetism, and one more topic is included here, that is the magnetic field in end-on position, at a point placed at end-on position and broadside on position. Clear? तो जो आपका मैग्नेट रखा होता है वो वर्टिकल प्लेन में रखा होता है, ये आपको पता है. ठीक है, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पोल पर निकालनी है तो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मीन्स अगर यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस हम बनाएंगे, सो मैग्नेटिक एक्सिस इज दिस वन, और यहाँ पर किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, सो दिस पॉइंट इज सिचुएटेड एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ दिस मैग्नेट विच इज प्लेस्ड इनसाइड द अर्थ कोर. क्लियर? ये अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा टॉपिक एक दिया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देख लेना, लिंक मैं शेयर करूँगी. यहाँ पर ये एंड ऑन पोजीशन हो गई. अगर किसी पॉइंट की बात हो रही है जिसपे इक्वेटर पे है, इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड एट इक्वेटर, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस इज द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हियर, दिस वन. इसके लिए रिकॉल क्या करना होता है आपको, डाइपोल का केस आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है. ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी पॉइंट की, अगर मैग्नेट, ये डाइपोल, यहाँ पे मैग्नेट इज अ डाइपोल. So if this AB magnet is placed here and a point where we are going to find out that magnetic field, if it is situated here, then it is the broadside on position, or it is also called equatorial position. ठीक है? और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑन, या उसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन. दोनों ही नेम सेम लोकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं पॉइंट की,
one is end on or axial position, equatorial position or broadside on position. So you must have to know the basic concept first of all. Here the point where we are going to find out the magnetic field, this point is situated at pole, and because the magnet is placed along with the axis of pole, along with the pole axis, then what will happen, this point is situated at end on position. और इक्वेटोरियल पे अगर पूछा जाए, इक्वेटर लाइन पे पूछा जाए, तो वहाँ पर आप कौन सा पॉइंट निकालोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब, दिस इज़ फॉर एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन के लिए होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r क्यूब ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए होता है। तो उसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रखते हो। रिलेटेड डेटा मैंने आपको डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंसी क्या है और उनके सिमेट्रिकल डेटास क्या आते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यूज़ होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2p के प्लेस पे 2m डिवाइडेड बाई r क्यूब। दिस वन इज़ द एंड ऑन पोजिशन। एंड ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट, उसमें जो पॉइंट है वो पोल पे सिचुएटेड है, दैट मीन्स एंड ऑन पोजीशन है पॉइंट की। सो वी विल फाइंड आउट दिस बी हियर एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻7। नाउ 2m means 2 into m value is given here, magnetic dipole moment 10⁻22 divided by r cube। r is the radius, तो ऑब्वियसली पोल पॉइंट से यहाँ तक की सेंटर तक की पोजीशन हो जाएगी। ये जो अगर हम डिस्टेंस निकाले पोल से लेकर के सेंटर तक की, तो वो डिस्टेंस होती है रेडियस के इक्वल। सो रेडियस किलोमीटर में, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 6.4 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट होगी दिस मच होल क्यूब। अब आपके पास, आपने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिए। सबसे पहले डेटा आपने लिखा, फिर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फिर उसके बाद आपने उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन करनी है अब यहाँ पर फॉर्मूले में। तो ये कैलकुलेशन थर्ड पार्ट आता है। न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं उसको भी आपको मैंने एक लेक्चर में समझाया था, आप देख लो, उसमें मेथड अप्लाई करो। बाकी मैं यहाँ साथ में भी बता रही हूँ किस तरीके से कर रहे हो आप। 16 10⁻15 डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट हटा दोगे आप तो 64⁻3 हो जाएगा, और ये डेसिमल हटाया है तो दैट मीन्स 10⁻5⁻3। सो 5 3 15, यानी ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। 16 डिवाइडेड बाई 64 64 64। ओके, नाउ 64 इंटू 64 4096, so it will come as 1/4 into 4096। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैं इसके आगे इधर कर रही हूँ, कैलकुलेशन ही है, उसको तो आप किसी भी मोड में कर सकते हो। 4 into 4.09 में कर दे रही हूँ इसे, तो 10⁻, यहाँ पर 3 आएगा, ऊपर जाकर के -3 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर 4.09 को 4.1 कर दिया राउंड ऑफ करके, और 4.1 को 4 रहने दिया राउंड ऑफ करके। अप्रॉक्सीमेशन में रिजल्ट्स निकालना। सो 1/16 हो गया 10⁻−3। 1/16 को सॉल्व कर लेते हैं। 26 समथिंग आ जाएगा इसमें। सो 0.0626 10⁻−3, दैट मीन्स 62.6 10⁻, कितने टाइम आप ले जा रहे हो, 1 2 3 टाइम्स और ले गए तो -6 हो गया, 3 टाइम्स आ गए यहाँ वैल्यू, तो दिस मच टेस्ला, और यू कैन राइट इट एज 62.6 माइक्रो टेस्ला। 10⁻−6 मीन्स व्हाट, माइक्रो टेस्ला। सो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है। सो बाय दिस वे यू विल सॉल्व दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर पोल पॉइंट पर पूछा जा रहा है सेम टाइप के क्वेश्चन में, तो एंड ऑन पोजीशन है मैग्नेट की। अगर इक्वेटर साइड में पूछा जा रहा है देन इट इज़ द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सो यू विल कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। गॉट इट। सो यू कैन नोट इट डाउन, और यू कैन डू वन थिंग, समझ में आ गया है तो बाद में पॉज करके भी देख सकते हो। ओके,
Come to next question. Question number 2 is earth magnetic field again. If the earth magnetic field has a magnitude of, magnetic field magnitude is 3.4 10 to the power minus 5 Tesla. This one is given, earth magnetic field. At the magnetic equator of the earth, what would be its value at the earth geometric pole? इक्वेटर पे इतनी वैल्यू है, ये इक्वेटर पर है, एट इक्वेटर। पोल पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू एट पोल। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। क्या बताया था अभी कि जो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या है, ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन की, यानी इक्वाटोरियल कंडीशन की है। जो आपकी पोल पे होगी वो एंड ऑन पोजीशन की है। फिगर पे जो मैंने पहले फिगर बनाई थी, सेम कॉन्सेप्ट हियर। तो आप यहाँ पर देखो तो ब्रॉड, ये एंड ऑन पोजीशन के लिए होगी, पोल पर एंड ऑन, एंड इक्वेटर पर क्या होगी, ब्रॉड साइड ऑन, या इसको हम इक्वाटोरियल भी कहते हैं, एक्सियल भी। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ऑन पोजीशन पे क्या आती है फॉर्मूला, 10 to the power minus 7, अब मैं वैल्यू रख रही हूँ। एंड ऑन में 2m आता है, और ब्रॉड साइड ऑन में इस पोजीशन पे क्या आता है, 10 to the power minus 7 m over r क्यूब। मीन्स सिंपल है कि इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की हाफ हो जा रही है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इक्वेटर पर हाफ है और पोल पर उसकी डबल हो जानी चाहिए। सो इक्वेटर पे दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, पोल पर कितनी होगी, BP is equal to twice of BE according to these formula. So you will just multiply the term and you will get the result. So here this numerical is conceptual numerical. You can apply here the concept and you will get the result. No need to do many calculation here. Got it? So this is your answer. Note it down. Clear है ये? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? अब नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन है दैट अ मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में फ्री टू रोटेट है, दैट मीन्स ये जोग्राफिकल प्लेन होगा। एक्चुअली जो मैग्नेटिक नीडल है वो जोग्राफिकल प्लेन में मूव कर रही होती है अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन। हम जहाँ सिचुएटेड है उसकी बेसिस पे जोग्राफिकल एक्सिस से निकाल रहे होंगे। सो मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि जोग्राफिकल प्लेन, इसको रब कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लिमिट तो न्यूमेरिकल की कोई नहीं होती है, बट फिर भी आप जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। हाँ, मेरे लिए लिमिट है ये कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में, बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, 100 न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं जितने एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट करा रही हूँ, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। उससे 2 बेनिफिट तो सबसे पहले हो जाते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपको फॉर्मूले सारे माइंड में आ जाते हैं, लर्न करना नहीं होता है, रटना नहीं है। सेकंड ये है कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाता है। जो कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर के बीच में नहीं समझ में आया था वो कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकल लगाने पर क्लियर हो जाता है। तो ये 2 बेसिक बेनिफिट तो आपको न्यूमेरिकल लगाने से आते हैं, ठीक है। सो इट विल बी बेटर टू सॉल्व एज मैनी न्यूमेरिकल एज पॉसिबल। मैंने तो अपने टाइम पे 100 न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं 1 चैप्टर के, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। सो दैट build a confidence in your mind to solve physics in a simple way, and that's my motto. Clear? So here it is given that magnetic needle is free to rotate in a vertical plane which makes 60 degree with the magnetic meridian. तो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था कि जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आपको अर्थ एलिमेंट मैंने बताया था, उस लिंक को भी मैं शेयर कर दूंगी, देख लेना आप लोग। अर्थ एलिमेंट, अर्थ मैग्नेटिज्म के अंडर में अर्थ एलिमेंट 3 है। एक है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सेकेंड है फर्स्ट वन, सेकेंड
एंगल ऑफ डिप, देखो डिप और डिक्लाइनेशन में मैंने देखा है अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिप मीन्स इंक्लाइनेशन एंड डिक्लाइनेशन मीन्स डिक्लाइनेशन ओनली। सो यहाँ पे डिप और डिक्लाइनेशन में डिफरेंस ये है, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ जो एंगल दिया हुआ वो एक तरीके से एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दिया हुआ है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि जो निडल है वो तो एक्चुअल में कहाँ होगी, ज्योग्राफिकल प्लेन में, और ये ज्योग्राफिकल प्लेन मैग्नेटिक प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो फर्स्ट वन, ये पीछे वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, एग्जैक्ट दिस इज द मैग्नेटिक प्लेन, दिस वन इज मैग्नेटिक प्लेन एंड दिस वन इज ज्योग्राफिकल प्लेन। तो मैग्नेटिक निडल अभी ज्योग्राफिकल प्लेन में, क्लियर, और उसमें कहीं ना कहीं किसी एंगल पर शिफ्ट हो रही है। तो एंगल दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में, दिया हुआ है इफ़ द एंगल स्टे इन द डायरेक्शन मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 2/3 विद द हॉरिजॉन्टल। सो वो एंगल, सबसे पहले तो इस एंगल को मैं ले लेती हूँ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है विच इज़ द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, क्लियर। एंड सेकेंड इज़ द फाई एंगल, फाई डैश है एक्चुअल में, ये एक्चुअल डिप नहीं है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिप एट दैट प्लेस। तो एक्चुअल डिप निकालनी है, ये एक्चुअल डिप नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो डिप हमें मिल रहा होगा ये हमें किस प्लेन में मिल रहा है, ज्योग्राफिकल प्लेन में। ये ज्योग्राफिकल प्लेन है और ये मैग्नेटिक प्लेन है। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। उस वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि होते क्या है मेरिडियन, कैसे हम ज्योमेट्रिकली वो मेरिडियन फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ पर्सन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाओगे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में यहाँ पर जो निडल है वो डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो कर रही है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में, और हमें उसका एक्चुअल डिप निकालना है, यानी एंगल ऑफ डिप निकालना है कहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन में। एक्चुअली जो निडल होती है मैग्नेटिक निडल, वो किसके बेसिस पे डिफ्लेक्ट हो रही होती है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड द अर्थ। ये सारा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है वो कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर की डिटेल में थ्योरी में दिया हुआ है, उस पर जो वीडियो है वो भी आप देख लेना। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें फाई डैश की वैल्यू दी हुई है, वो फाई डैश है tan इनवर्स 2/√3, ये वैल्यू दी हुई है, और हमें एक्चुअल फाई निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, ओके, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में वो हमें एंगल निकालना है। गॉट दिस कॉन्सेप्ट। तो अच्छा, अगर आप ऐसे देखो यहाँ फिगर में 3 डायमेंशनल में तो नहीं बन पाएगा, ये अगर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इनके बीच में जो एंगल है उसके बेसिस पर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ये है और एक ये भी है, ठीक है, ये BH डैश है और ये एक्चुअल BH है। इनके बीच में सबसे पहले तो हम रिलेशन देखें तो BH डैश और BH के बीच में रिलेशन क्या आएगा। सो हियर cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BH डैश ओवर BH, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो BH डैश ओवर BH, that is the value of cos 60. So what is the value of BH dash? This is BH cos 60, ठीक है। अब BH की वैल्यू आपको अभी पुट करनी है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। गॉट इट। सो ये BH डैश की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो दिया हुआ है आपका ये एंगल ऑफ डिप इन द ज्योग्राफिकल प्लेन है। सो tan फाई डैश इज इक्वल टू 2/√3 दिया हुआ है। अच्छा, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BV ओवर BH। तो BH डैश आएगा क्योंकि फाई डैश है, ये ज्योग्राफिकल प्लेन की बात हो रही है। वर्टिकल जो कंपोनेंट है BV, ये ज्योग्राफिकल प्लेन में भी सेम है और मैग्नेटिक प्लेन में भी सेम है। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन दोनों सेम वैल्यू है। सो BV तो सेम रहेगा, BH में वेरिएशन है। फाई डैश के लिए BH डैश है, फाई के लिए BH है, और हमें निकालना क्या है, फाई निकालना है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, आप BH डैश और BH में जो रिलेशन है उसको वहाँ पुट कर दो, आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सो BH डैश इज इक्वल टू BH 1/2।
या इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, इसी स्टेप में मैं कर दे रही हूँ. दिस 2 विल कम इन न्यूमरेटर. नाउ ट्वाइस ऑफ बी वी ओवर बी एच. सो दिस इज़ 2/3. 2 and 2 कैंसिल कर दो. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नाउ बी वी ओवर बी एच, जो वैल्यू हमें निकालनी थी, विच इज़ इक्वल टू tan phi एक्चुअल एंगल ऑफ टिप. सो बी वी ओवर बी एच यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ रहा है. सो बी वी ओवर बी एच इज़ इक्वल टू 1/√3 tan phi. सो ये आपका आंसर हो गया. आपको इसमें फाई की वैल्यू भी पता है. ये tan phi अगर 1/√3 आ रहा है तो फाई है 30 डिग्री. सो दिस इज़ द आंसर. क्लियर था ट्रिकी क्वेश्चन ये, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो. सो एच.सी. वर्मा बुक हो या आपकी खुद की रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. सॉल्व करोगे तो मज़ा आएगा बाद में. ठीक है, तो इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल्स ये इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इन न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करो. जितना सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होता जाएगा. क्लियर. सो दिस इज़ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. एंड नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 4. ये न्यूमेरिकल नंबर 4 मैं आपको करा रही हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से. आपको पता है कि इस यूनिट में ये यूनिट नंबर आपकी आएगी 5. ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर यूनिट नंबर 5 है. इसमें 2 पार्ट में डिवीज़न था, मैंने इसीलिए 2 अलग अलग वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक वीडियो में तो अर्थ मैग्नेटिज्म है, दूसरे में आपका था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके 2-3 सेक्शन बने थे, 2-3 वीडियोस उसमें बने थे. लेंथी सेक्शन था वो और इम्पॉर्टेंट भी है. तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे अब हम बात करने जा रहे हैं. उसके फॉर्मूले आपको लिखने होंगे, उसमें कई फॉर्मूले थे, कई कॉन्सेप्ट थे, तो वो आपने यूज़ करना है यहाँ पर. न्यूमेरिकल नंबर 4. द मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H. B और H में रिलेशन पता है ना. मैग्नेटिक फील्ड B है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H है. सो रिलेशन क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H. ठीक है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इन अ गिवन मटेरियल आर फाउंड टू बी 1.6 टेस्ला. B की वैल्यू दी हुई है 1.6 टेस्ला एंड 1000 एम्पियर पर मीटर. दिस वन इज़ 1000 यानी 10⁻³ एम्पियर पर मीटर. वैल्यूज़ दी हुई है. म्यू नॉट की वैल्यू पता ही होती है. रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूले को पूछा जा रहा है एक तरीके से. ससेप्टिबिलिटी जाई फॉर द मटेरियल, ये 2 टर्म्स आपको निकालने हैं. तो सॉरी, ये 2 टर्म्स निकलने हैं. अब इसमें देखो 2 टर्म्स में तो ये एक फॉर्मूले से लिंक्ड है ये सारे टर्म्स. वो फार्मूला क्या था, टोटल मैग्नेटिज्म जो आता है वो इनिशियल जो मैग्नेटिज्म होता है यानी I और H का एडिशन होता है मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट. ये बेसिक फार्मूला था, आपने पढ़ा था ये फार्मूला. इसको मैंने स्टार्ट किया था कि B इज इक्वल टू B नॉट इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस. जैसे कि एक आयरन पीस को अगर हम एक सोलेनाइड के अंदर डाल दें तो आयरन पीस की इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन एंड सेकेंड इज़ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड. सो दैट इज़ द केस हियर. सो उससे हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस H. I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, रिमेंबर दिस पॉइंट. नहीं अभी तक समझा है तो अच्छे से समझ लो, देख लो इसे. लिंक मैं फिर शेयर करती हूँ इधर, इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूँगी, अच्छे से देख लेना. तो एक कॉन्टीन्यूटी बन जाएगी आपको कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ यूज़ हो रहे हैं. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस H. अब आपको निकालनी है ससेप्टिबिलिटी. अच्छा, I और H में भी एक रिलेशन होता है. I इज इक्वल टू होता है जाई H, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंडेंट फैक्टर है अप्लाइड फील्ड का, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, और जाई एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है. ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सब्सटेंस की. अब हमारे पास जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बेसिस पर हम सबसे पहले जाई निकाल सकते हैं और फिर फॉर्मूले में यूज़ करके हम दैट द सेकेंड टर्म रिलेटिव परमेबिलिटी भी निकाल सकते हैं.
अप्लाई कर दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, i की जगह आपने रखा जाई, ठीक है, जाई h रखा, h मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, h हियर इज कॉमन, जाई की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं, b ओवर h ओवर म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ठीक है। तो जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देंगे 1, ठीक है। सिंपल है, आपने पहले फॉर्मूला देखा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए और उस फॉर्मूले को आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इज़ इट फाइन ना, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू? If you have any confusion, any problem related to your numericals, you can solve it. स्कूल में भी मैं बच्चों से अलग से पूछती रहती हूँ और अभी भी ऑनलाइन क्लास में भी आपको क्वेरी है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली आपकी क्वेरी भी ऑनलाइन आएगी, उसको पूछते जाओ। कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, ठीक है, बीच में मत छोड़ना। जाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, 1.64 पाई 10 टू द पावर -7 h 10 टू द पावर 3। कैलकुलेशन में मज़ा आना चाहिए, भागना नहीं है। इस टर्म को 10 टू द पावर -1 कर दो, 416, 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 3.14 पाई की वैल्यू थी, मैंने 3 रखी है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 10 टू द पावर ये -4 हुआ, ऊपर जा कर के 4 हो गया, एक माइनस लगेगा, 3 आ जाएगा -1, 4/3 1.33 हो जाता है, 10 टू द पावर 3 -1। तो अब अगर ये वैल्यू देखो तो 10 टू द पावर 3 इसके साथ में अगर हमें माइनस करना है तो इस टर्म को भी 10 टू द पावर 3 टर्म में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स कैसे आएगा ये, डेसिमल लेफ्ट साइड में इंक्रीज़ करके 10 टू द पावर 3। इतनी वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करने का कोई ऐसा खास चेंज होना नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेशन में तो हम यहीं पर डायरेक्टली लिख सकते थे कि -1 करने पर भी सेम वैल्यू आएगी, बट मैंने आपको करके दिखाना था यहाँ पर कि ऐसा होगा। 1 माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा 29, दैट इज़ या 30 है, 30 में से 1 माइनस किया, ये हो गया 29 10 टू द पावर 3। सो 1.329 10 टू द पावर 3 दैट इज़ द ससेप्टिबिलिटी। यूनिट यहाँ पे कोई नहीं यूज़ करनी बिकॉज इट इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो ये ससेप्टिबिलिटी का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आपको सेकेंड पोर्शन क्या निकालना था, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। इसी की बेसिस पर, इस रिलेशन की बेसिस पर ही हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल को के डेटाज लिखे थे, डाया पैरा फेरो के डेटाज लिखे थे। क्या होते हैं डेटाज, वो सारे डेटा वहाँ पर इस रिलेशन की बेसिस पर आ रहे थे। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो 1 प्लस जाई का मतलब है कि यहाँ पर देखो ये 1 था, इसको इधर ले गए तो 1 प्लस जाई हो गया, यानी जो वैल्यू इस वैल्यू का आंसर आ रहा था वही सेम आंसर रिलेटिव परमेबिलिटी का, यानी दैट इज़ 1.33 10 टू द पावर 3। दिस इज़ द आंसर। म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर देख लो, -1 था, इधर जाएगा तो 1 प्लस जाई हो जाएगा, 1 प्लस जाई की ही वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ रिलेटिव परमेबिलिटी। यू विल गेट द आंसर हियर। सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। टोटली conceptual based, totally formula based, relation based. If you know the theoretical part, you can do this part here. Question number 5. लास्ट टाइम मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं आपको 6 क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन अभी मैं करा रही हूँ। द ससेप्टिबिलिटी, नोट डाउन द डेटा and statement if you want. The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 10 to the power, this is -5. Susceptibility 1.2 10 to the power -5, यूनिट नहीं होगी। टेम्परेचर दिया हुआ था 300 Kelvin. At what temperature will the susceptibility increases to 1.8 10 टू द पावर -5, यानी इंक्रीजेस 2 लिखा है, बाई लिखा होता तो चेंज निकालते,
2 लिखा है मीन्स फाइनल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 2 और बाई में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 दिया है तो मीन्स फाइनल वैल्यू दी है, अगर बाई दिया हुआ है चेंजेस बाय तो मीन्स आप जो चेंज दिया होगा उसको इनिशियल वैल्यू में ऐड करके फिर फाइनल वैल्यू निकलती है, ठीक है। सो इट इज़ गिवन एज 1.8 10 टू द पावर -5। टेम्परेचर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे T1 इज़ दिस वन, T2 आपको निकालना है। रिलेशन अगर देखो तो ऐसा एक फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ ये दोनों आपस में एक किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म से वाइंड अप है, एंड दैट फॉर्मूला इज जाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली भी कह सकते थे 1 ओवर टेम्परेचर के। तो जितना टेम्परेचर राइज अप होता है ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती है। सो यू हैव रिटन इट एज C/T, ये रिलेशन था। अब इस रिलेशन के बेसिस पे C इज़ अ क्यूरी कांस्टेंट, तो xi1 ओवर xi2 दैट इज इक्वल टू T2 ओवर T1, रेसिप्रोकल है। अब आप यहाँ पर T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, xi1 ओवर xi2 इंटू T1, xi1 ओवर xi2 10 टू द पावर -5 तो कैंसिल हो जाएगा, 1.2 1.8 T2 की वैल्यू 300, सॉल्व कर लो। Kelvin, this one is the answer. So temperature 200 Kelvin पे susceptibility इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, susceptibility इंक्रीज करेगी, reciprocal relation. So this is again a very simple question. Now come to the last question of the day, that is question number 6. कर लिया ये? मेरे पेन की इंक भी फिनिश हो चुकी है, मार्कर की, उसको फिलअप करना पड़ेगा, तभी मुझे नेक्स्ट मार्कर यूज़ करना पड़ रहा है। द कोर्सिव फोर्स, ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, द कोर्सिव फोर्स फॉर अ सर्टेन परमानेंट मैग्नेट इज, दिस इज कोर्सिव फोर्स। पहले तो ये टर्म समझ लो, कोर्सिव फोर्स और कोर्सिविटी बोथ आर सेम थिंग। कोर्सिविटी आपने पढ़ी थी, IH ग्राफ, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस भी दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। द कोर्सिव फोर्स ऑफ अ सर्टेन परमानेंट मैग्नेट इज़ 4 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर। यानी कोर्सिविटी कौन सा टर्म होता है, H। IH ग्राफ आप बनाते थे यहाँ पर, ये लीफ शेप आता है यहाँ पर, ठीक है। This is H, this one is I, intensity of magnetization and magnetic field intensity. So this is coercivity which is corresponding to, यहाँ C आना चाहिए, this one is C. Coercivity, this is corresponding to the applied magnetic field intensity, and this value is given here H as 4 10 to the power 4. So H here is 4 10 to the power 4 ampere. This is ampere per meter. ये H की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ 40 टर्न्स। लॉन्ग सोलेनाइड में रखी हुई है ये, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए हुए 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है यानी n डिवाइडेड बाई L, इसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया हुआ है। एंड a current is passed in the solenoid to demagnetize it completely, ठीक है, demagnetized it completely, find the current। I की वैल्यू निकालनी है फॉर डीमैग्नेटाइज्ड। तो आपको पता है कि ये है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, रिटेंटिविटी। इस पॉइंट पर आते हैं, इसको हम H कहते हैं, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया है, ये दैट इज़ द H विच इज़ कॉल्ड कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। सो हियर आपको H निकालना है, एंड यू नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, ये होता है। सोलेनाइड का केस लिया है तो सोलेनाइड के लिए B की वैल्यू होती है म्यू नॉट NI इज इक्वल टू म्यू नॉट H हो जाएगा। म्यू नॉट कैंसिल, करंट निकल आएगी आपकी। सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में अगर देखो तो।
कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई सही कर दिया तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन न्यूमेरिकल में। सो 4 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवीज़न में आएगा, यहाँ पर डिवीज़न में 10 to the power -2, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में, तो वो डिवीज़न वाला डायरेक्टली ऊपर जाएगा 10 to the power -2, ठीक है, समझ रहे हो, पर सेंटीमीटर था ये, तो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। सो हियर यू विल गेट द वैल्यू एज 1/10 हो गया, एंड दिस वन इज़ 10 to the power 2, यानी 100/10 दैट इज़ 10 एम्पियर। सो दिस करंट इज़ 10 एम्पियर। सिंपल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको अपने आप लगेगा कि इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं था। सो दिस इज़ ऑल overall 6 different kind of numerical from S.C. Verma book, Snake Halliday, S.C. Verma, शाम सीरीज़, ये 3 बुक्स कंपटीशन के लिए माइलस्टोन मानी जाती हैं। इनको सॉल्व करने के बाद अगर किसी बच्चे ने डीपली सॉल्व किया है तो आई कैन से दिस ही मस्ट बी सिलेक्टेड इन दैट कंपटीशन, एंड दिस दैट इज़ व्हाई आई एवरी टाइम से इज़ द नेम ऑफ एच सी वर्मा कि आप इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। यानी अगर आप एबल हो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब आप एबल हो कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए। दैट्स बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। गॉट दिस पॉइंट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम आई विल मीट with a new topic, that is EMI. Okay, EMI means electromagnetic induction.